हाँ कैमरा सेट करो एकदम अंदर लागे बराबर आई अंदर જોવાની આ સીડી જેવો લાગતો એ આનો हाँ कुर्सी ना वाला तारनो हाँ इनका तो ऊपर है ને આની અંદર આવે ને આ કામ તો બરાબર છે नहीं आपसे बराबर એનો કેમેરો સીધો આના ઉપર જ છે મને ડ્રોઈંગ કરવાનું અંદર લાગે થોડું કરી દઈએ એક મિનિટ હા હવે દેખાય તો एडमिट करी दो चालू करी दो हाँ चालू कर दो पकड़ी स्क्रीन पर तो चालू રાખજો ને बुद्ध पद्मा सुनिया हाँ ये तुम करो તમે ખાલી પોતા 14 જણા છે हाँ हाँ ये तो आवश्यक है आता है हाँ તમે ખાલી कर दो હેલો પણ એમનો અવાજ મને નહીં આવતો ને माइक ऑफ है बताइए એક મિનિટ ચાલુ રાખજો હેલો ગુડ મોર્નિંગ હા ગુડ મોર્નિંગ બેટા गुड मॉर्निंग सर आवाज आई रही હેલો મારો અવાજ આવે કમ્પ્લીટ બેટા બરાબર આવ્યું हाँ हाँ सर બધાને हाँ सर ગુંજન 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 પંચાલ અવાજ આવે हाँ सर દક્ષ પટેલ હેલો સ્નેહરાજ ભઠ્ઠા यस सर હેલો બેટા કેમ છો ચલો ખુશી બામન મજામાં એટલે ખુશી બામન यस सर પિનલ માછે તો મજામાં ડ્રોઈંગ દેખાવાનું છે ને Yes, sir. પછી ફેર કરવાનું પ્રિન્સ પછી આમ કરીને બોલા પ્રિન્સ यस सर नानी હા તો પહેલા ડ્રોઈંગ બનાવ્યા ને પછી સોલંકી નિધિ સોલંકી નિધિ હેલો બેટા यस सर હેલો ગુડ મોર્નિંગ યુગ્મા લબાના यस सर ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ સ્નેહ પંચાલ હેલો यस सर ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ દામોર દેવપ્રિયા यस सर હેલો બેટા મારો અવાજ સંભળાય છે પારગી નિસર્ગ यस હા ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ગુડ મોર્નિંગ બેટા મેં તમને મેસેજ મોકલાવેલો એમાં મેં આર્ટ માટે હેલો કીધેલું હતું હા હા બેટા गुड मॉर्निंग सर લાવેલા છો હા હવે બધા પર છે તમારો માઇક બંધ કરી દો બેટા બધા પર છે હેલો દામોર દેવપ્રિયા માઇક ચાલુ છે તારો બધા પર सर अनम्यूट करना है કન્યાની ડાળખી એવું છે બધા પર જાસવંતીની ડાળખી એવું બધા પર છે હા હવે એને જોઈને આપણે બનાવવાનું છે મેં પહેલા સ્કેચ બનાવું પછી તમે પણ બનાવો चालू कर दो હા હેલો પહેલા હું બનાવું છું તો તમે ધ્યાનથી જુઓ બરાબર પહેલા હું બનાવું છું સ્કેચ કરું છું એ સ્કેચ તમે બરાબર જુઓ પછી તમારે પણ લાઈવ જોઈને કરવાનું છે એટલા માટે મેં તમને કીધું હતું કે તમારે ડાળખી લાવવાની છે બરાબર તો હું તમને એક કેવી રીતે સ્કેચ કરવો એ તમને બતાવું છું હેલો હેલો हेलो सर હા આજે हेलो બધાને અવાજ આવે બેટા આવે છે
હા આજે બેટા ગરુડાસન કેવી રીતે કરવાનું અને ગરુડાસન કરવાથી શું શું ફાયદા થાય એના વિશેને મેં તમને વોટ્સએપ પણ મોકલી દીધો છે. હેલો, આ દાખલી છે એ હેલો, દાખલીને તો તમારે વોટ્સએપ તમારા કોઈ ત્યાં આવી જગ્યાએ જશે. outline લેવાની છે. આજે હું તમને થોડી માહિતી આપી દઉં તો હું સામે મૂકું છું, ગરુડાસન મને જેવું વિશે. દેખાય એવી રીતે હું ડ્રો કરું છું. તો ગરુડાસન બરાબર? તમને જેવું દેખાય એ રીતે તમારે કરવાનું. બરાબર? આ રીતે સામે ફૂલની પત્તી છે અને મને જેવી રીતે દેખાય છે એવી રીતે થોડું મને योगासन से વ્યવસ્થા होने કરવામાં वाले થોડી शारीरिक તકલીફ તો और પડશે ને मानसिक cabinet लाभ ને એવું settingમાં. किसी એટલે चमत्कार से થોડી कम તમે नहीं है. તમારી રીતે તમે થોડું એડજસ્ટ કરી લેજો. प्रतिदिन हर रोज બરાબર? योगाभ्यास તમારા करने હાથ वाले actually लोग ગોળ इससे होने वाले फायदे से ગોળ લાડુ બનાવીને એની અંદર भली તમે भांति fix કરી શકો. परिचित है. આ સ્કેચને वैसे जो लोग તમે योग के विषय में ज्यादा नहीं जानते उनके लिए बता दे कि તમે આ शरीर के જે अलग अलग अंगों को પત્તી स्वस्थ છે, रखने के મતલબ लिए ફૂલ છે એને विशेष તમે योग क्रियाएं की એક जाती है. માટીના લાડવાની અંદર आपको તમે fix કરવા मालूम માટે ही કરી होगा શકો. कि બરાબર? आप ગ્રાઉન્ડ आप तो छोटे તમે छोटे बच्चे हो तो પરીક્ષામાંથી आपको भी જોઈને ग्राउंड में બનાવો रनिंग તો એવી करना રીતે તમે है, પણ બનાવજો. પહેલા योग મને भी જોઈ करना લેવો है, लेकिन કેવી રીતે કલ્યાણની ડાળી છે एक्सरसाइज में ये सब जो करते हैं જેવી उससे રીતે शरीर દેખાય का છે जो મને એવી बाहर રીતે હું बाह्य બનાવવાનો है, પ્રયત્ન કરું शरीर છું. का बाह्य अंग है, બરાબર? તેવી રીતે તમે શરીરના પણ જે બહારના અંગો બનાવજો. છે એને કસરત મળે છે, પરંતુ શરીરના અંદરના જે અંગો છે એને કસરત કરાવવા માટે તો યોગાસન જ કરવા પડે, प्राणायाम જ કરવા પડે, जिसमें गरुड़ासन का भी नाम शामिल है. यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें कि योग किसी बीमारी का सहायक उपचार हो सकता है, इसे एकमात्र इलाज न समझा जाए. मतलब કે યોગ કરવાથી આપણી બીમારી જતી રહેશે એવું નથી, પરંતુ એનો ન થાય એના માટેની આપણને થોડી એક સામાન્ય ઈલાજ છે અને આપણે દરરોજ કરીએ તો આપણને कोई बीमारी जल्दी न થાય. अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट को नजरअंदाज मत करे. मतलब कोई बीमार હોય તો પછી કે મારે તો હું તો योग કરીશ અને योग કરીશ તો મને મટી જશે, પણ એવું નહીં. જ્યાં તમે બીમાર હોય ત્યારે ત્યાં ડોક્ટરની સલાહ લેવાની હોય, ત્યાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઈએ. तो आइए आज स्टाइल फ्रेज के इस लेख जानते हैं गरुड़ासन करने का तरीका और शरीर को होने वाले गरुड़ासन के फायदे. साथ ही इस आसन को करते वक्त किस प्रकार की सावधानी बरतनी है इस विषय में भी जानकारी देंगे. और गरुड़ासन क्या है? व्हाट इज गरुड़ासन? तो गरुड़ासन एक प्रकार का योगासन. इस आसन का नाम पौराणिक कथाओं में वर्णित पक्षियों के राजा गरुड़, आप पहचानते हैं ना गरुड़ को, तो पक्षियों के राजा गरुड़ के नाम पर रखा गया है. गरुड़ासन की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गरुड़ से हुई है. इसे अंग्रेजी में गरुड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईगल. ईगल पोच के नाम से भी जाना जाता है. यह योगासन मुख्य रूप से कंधे, शरीर के जो कंधे होते हैं कंधे, ये कलाई होती है कलाई, बाजू और पैर वाले हिस्से पर असर डालता है. साथ ही यह आपके टखनों और कुल्हों को भी मजबूत करने का काम कर सकता है. जो इस आसन को करना चाहते हैं उन्हें शरीर का संतुलन बनाए रखने की अति आवश्यकता होती है. जो कोई भी यह गरुड़ासन करना चाहता है तो गरुड़ासन करने से उसके पहले तो एक तो संतुलन, बैलेंस कैसे करना है वो बैलेंस करके ही करना चाहिए. હેલો, હું ડ્રોઈંગ બનાવડો છું એવી રીતે તમે પણ પહેલા જોઈ લો પછી તમે गरुड़ासन का फायदा क्या है? તમારી सामने तो गरुड़ासन करने से कई तरह के फायदे हो सकते हैं. इसकी जानकारी होने के बाद आप भी इस आसन को करने के बारे में जरूर सोचेंगे. वही अगर गरुड़ासन के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इस पर अधिक रिसर्च नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद गरुड़ासन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता. इस आसन के फायदे कुछ इस प्रकार के. तो एक नंबर फायदा नंबर 1,
संतुलन में सुधार, बैलेंस में सुधार होता है। गरुड़ासन करते समय आपको एक ही पैर पर शरीर का संतुलन बनाना पड़ता है, एक ही पैर पे खड़ा रहना पड़ता है। इससे शरीर का संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। इस योग के शुरुआत में आपको संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। पहले थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो थोड़ा गिर जाएंगे, फिर खड़े होंगे, गिर जाएंगे, खड़े होंगे, ऐसे ही आप बैलेंस बना के ही रखना है। इसलिए शुरुआत में इस आसन को योग विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। मतलब कि कोई टीचर हो अथवा तो તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ હોય એની સાથે તમે કરો તો તમને योग કરવામાં कोई परेशानी नहीं થાય। बेनिफिट नंबर 2, जांग और हिप्स को स्ट्रेच करने के लिए। जब गरुड़ासन करते हैं तब इसका ज्यादातर प्रभाव कांध और हिप्स पर होता है। कांध मतलब ये कांध और पीछे का जो हिप्स है इसी पर तमने वजन लागे, इस हिस्से के आपको खींचाव महसूस हो सकता है। इसलिए गरुड़ासन के अन्य लाभ में जांग और हिप्स के स्ट्रेचिंग को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इस पर अभी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पीठ को लचीला करने के लिए, तो पीठ को लचीला करने के लिए भी गरुड़ासन करना चाहिए। गरुड़ासन करने के लाभ में पीठ को लचीला बनाना भी शामिल है। दरअसल हर एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसे करने से शरीर को कई भागों में खींचाव पैदा होता है। आप अगर जो गरुड़ासन करते हैं तो शरीर के जो भागों, जो पार्ट है, शरीर का पार्ट है, वो उसमें खींचाव आता है। जो खींचाव आता है तो आपको समझ लेना है कि वो आपको एक्सरसाइज वहां पर चल रही है, वहां पर मूवमेंट हो रही है। जो दर्द होता है वहां पर भी आप स्ट्रेचिंग हो रही है, ऐसा समझ के ही एक्सरसाइज करना है, खींचाव पैदा होता है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि पीठ को लचीला करने में ये गरुड़ासन बहुत लाभदायी है। अब और एक चौथा नंबर बेनिफिट, मांसपेशियों की मजबूती में सहायक। अगर मांसपेशियां कमजोर होती जा रही है तो व्यक्ति को मांसपेशी संबंधित समस्या हो सकती है। ऐसे में गरुड़ासन पर भरोसा किया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो शरीर में खींचाव पैदा करने के काम करती है। इस आसन का फायदा खासकर पैर, घुटने और टखनों में मजबूत करने में दिख सकता है। साथ ही यह आसन पैर की मांसपेशियों में ऐंठन के दूर कर उन्हें मजबूत करने का काम भी कर सकता है। बेनिफिट नंबर 5, तनाव को कम करने, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसको कम करने के लिए भी ये गरुड़ासन है, वो गरुड़ासन फायदा कारक है। तो योग और उससे होने वाले मानसिक फायदे से लगभग सभी परिचित है। योग करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। गरुड़ासन की गिनती भी उन खास आसनों में होती है जो तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। इसीलिए तनाव को मुक्ति पाने गरुड़ासन के फायदे कम करते हैं। तो तो गरुड़ासन का जो फायदा है, गरुड़ासन का फायदा और गरुड़ासन कैसे करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दूंगा। अभी मैं आपको बद्ध पद्मासन के बारे में बताऊंगा। बद्ध पद्मासन नेचर ड्रॉइंग જે તમે કરો છો એક પ્રકારનું આપણે સ્કેચિંગ જ કરવાનું છે અને આ સ્કેચિંગ થઈ ગયા પછી तो दूसरा आसन है, पहला आसन था गरुड़ासन और दूसरा आसन है बद्ध पद्मासन। अब बद्ध पद्मासन के बारे में पहले थोड़ा जानकारी देता हूँ। यह पद्मासन का ही एक प्रकार है। बद्ध पद्मासन है वो पद्मासन का ही एक प्रकार है। यह आसन ध्यान के लिए नहीं है बल्कि मुख्यतः स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, शरीर को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए है। यह आसन श्रम साध्य है, इसलिए जिन लोगों से यह आसन प्रारंभ में न हो पाए वे भी निराश न हो और धैर्यपूर्वक धीरे धीरे आप आसन करते रहेंगे तो आसन बद्ध पद्मासन कर सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन
को कैसे करना है। तो एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर पद्मासन में आप बैठते हैं वैसे पद्मासन में बैठ जाना। पेट के नीचे वाले हिस्से को एड़ियों की स्पर्श होना चाहिए। फिर दाएं बाएं हाथ पीठ के पीछे ले जाए। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा ऑपोजिट साइड का जो आपका जो हाथ है वो हाथ का ऑपोजिट साइड का अंगूठा पकड़ लो पीछे की साइड में। पैरों के अंगूठे पकड़ते समय कठिनाई महसूस हो तो आगे की ओर झुककर भी अंगूठे को पकड़े और अंगूठे पकड़ने के बाद फिर पूर्ववत सीधे हो जाए। तो अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा झुक के भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाना है। श्वासोश्वास धीरे धीरे जारी रखना है। ये आसन करते वक्त आप 1-2 मिनट से शुरू कर क्रमशः 10 मिनट तक पहुंच सकते हैं। तो पहले 1-2 बार करना, 1-2 मिनट रखना, फिर धीरे धीरे आप 4-5 मिनट करना, फिर उसके बाद 10 मिनट तक ये आसन करना। अब बद्ध पद्मासन से क्या क्या फायदा है? तो बद्ध पद्मासन से फायदा देखो, जहां पर भी आप कोई भी आसन करो तो आपको जहां पर दर्द हो रहा है तो उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, इतना समझ लो। तो नंबर 1, आसन में दोनों घुटनों और टखनों के जोड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे पैरों की जोड़ मजबूत, पैर का जो जोड़ है वो आपका मजबूत होता है। इस आसन में दोनों पैर की एड़ियों का संपूर्ण व्यायाम मिलता है। दोनों पैरनी जे बन्ने पग छे ने एडी हो ने नीचेનો ભાગ એડીનો ભાગ એ મજબૂત થાય છે। यह आसन मेरुदंड मतलब પાછળનું જે મણકા કહેવાય ને એ મણકા તમારા મણકા અને રીઢ જે છે એ દુર્બલતા જો है તમે સીધા ના બેસી શકતા હોય તો ધીરે ધીરે તમારા મણકાઓ જે છે આ મેરુદંડ છે એ તમારા વ્યવસ્થિત રહે છે। साथ ही घुटनों की जोड़ों की पीड़ा दूर होती है। यह आसन शारीरिक गठन की खराबियां दूर करता है। यह आसन कमर को भी स्वस्थ रखता है। यह आसन करने से अपच मतलब आपको जो खाते हैं वो अपचा नहीं हो जाए, इसीलिए अपचा, अफरा, पेट का दर्द, ये सब बीमारियां दूर होती है। इस आसन के द्वारा पद्मासन के लाभ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। यह आसन सिर दर्द और माइग्रेन से राहत दिलाने वाले योग श्रेणी में आता है। मेन स्क्रीन हेलो माइक हेलो माइक अनम्यूट कर दो बेटा, चालू कर दो एटले माइक शुरुआत कर दो। चालो जाओ કરી દીધું। એ આ 77 105 અને 105 આ નંબર કોનો હ જેનો નંબર टिकटॉक बंद करने એ ગયા પીરિયડ માં તમને જે ભણાવી તું ને ગયા પીરિયડ માં શું ભણાવી તું બોલો? शांति और सभा शांति और सद्भावना। શું વાત છે? કોને જવાબ આપ્યો મને કહો પહેલા, જવાબ કોને આપ્યો? તમને કોઈ દિક્કત હોય કોઈ તકલીફ ભાર્ગવી? हां सर। હા સરસ, વેરી ગુડ બેટા। તો ગયા પીરિયડ માં મેં શાંતિ અને સદ્ભાવના વિશેનું તમને જે લખવા આપ્યું હતું એ લખવાનું છે। એના પછી આજે જે તમને ગરુડાસન અને બદ્ધ પદ્માસન એ હું તમને WhatsApp માં તો હું મોકલી જ દઈશ। હેલો, તમારા આ નંબર ઉપર WhatsApp ના નંબર ઉપર તમને હું મોકલી દઈશ। રિસ્પોન્સ નહીં આવતો બેટા તમારા કોઈનો? हाँ सर। हाँ તો सर। તમે हाँ सर। તો તમે એના જે WhatsApp ઉપર તમને જે મોકલો ગરુડાસન અને બદ્ધ પદ્માસન એના વિશેની જે માહિતી છે એ માહિતી તમારે એક નોટબુક બનાવવાની છે। નોટબુકની અંદર પહેલા શાંતિ અને સદ્ભાવના, બીજું ચેપ્ટર તમારે ગરુડાસન અને બદ્ધ પદ્માસન વિશે લખવાનું છે। ઓકે બેટા, ટાઈમ થઈ ગયો અને તમારે નેક્સ્ટ પીરિયડ ચાલુ થશે હવે જેનો હોય એનો, બરોબર? ઓકે।
બાય સર. બાય બેટા બધાને. હા, તમારે બાય સર. બાય.